یہ شاندار سٹرکچر نہ صرف 2 کوسٹ کو آپس میں جوڑتا ہے بلکہ 3 بڑے سٹیز کو بھی کنیکٹ کرتا ہے۔ یہ میگا پروجیکٹ جو کہ بالکل 55 کلومیٹر لمبا ہے، ایک حیران کن سسٹم ہے جو بریجز، ٹنلز اور آرٹیفیشل آئیلینڈز پر مشتمل ہے۔ اور سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ یہ جائنٹ برج صرف پانی کے اوپر سے نہیں گزرتا بلکہ ایک خاص حصے میں وہیکلز ایک بہت بڑے انڈر واٹر ٹنل میں ڈائیو کرتے ہیں اور اوشن کے نیچے سے گزرتے ہیں۔ اس کی تعمیر میں استعمال ہونے والی ٹیکنالوجی کسی سائنس فکشن مووی سے کم نہیں لگتی۔ جائنٹ پلنگ مشینز نے پانی کے اندر گہرائی میں کئی میٹر لمبے پلرز کو نصب کیا، پھر ہر ایک برج بلاک جو کہ کئی ٹن وزنی تھا ملی میٹر لیول کی پریسیشن کے ساتھ اپنی جگہ پر رکھا گیا۔ ونڈ، ویوز، ارتھ کویکس، ان سب فیکٹرز کو مد نظر رکھتے ہوئے اس برج کو ڈیزائن کیا گیا تاکہ یہ ہر قسم کی قدرتی آفات کا مقابلہ کر سکے۔ اب سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ہم بات کس کی کر رہے ہیں؟ کون سا ملک ہے جو اس قدر ایڈوانس ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے دنیا کے شاندار میگا پروجیکٹس ڈیولپ کر رہا ہے؟ ان سوالوں کے جواب میں آپ کس کنٹری کا نام لیں گے؟ جی ہاں، اس حیران کن ترقی، بے مثال انجینئرنگ اور دنیا کو حیران کر دینے والے میگا پروجیکٹس کی فہرست میں صرف ایک ہی ملک ہے جو نمبر 1 پر آتا ہے، اور وہ ہے چائنا۔ جی ہاں، آپ نے بالکل صحیح سنا، چائنا۔ چائنا $500 بلین کی ہیوج انویسٹمنٹ کے ساتھ ملک کے مختلف حصوں میں ایسے میگا پروجیکٹس بنا رہا ہے جو نہ صرف اپنے سائز بلکہ اپنی ٹیکنالوجی کی بدولت بھی دنیا کی توجہ کا مرکز بنے ہوئے ہیں۔ اب پھر وہی سوال، آخر کیوں؟ فیکٹس می کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے ویلکم۔ جب یہ پروسیس شروع ہوتا ہے تو جائنٹ مشینز آپ کی آنکھوں کے سامنے زمین کو ہلانا شروع کر دیتی ہیں۔ ٹاورنگ پائلنگ مشینز بڑے بڑے سٹیل یا کنکریٹ پائلز کو زمین میں اتارتی ہیں، یا تو ٹنز آف ویٹ کے ساتھ یا پھر شدید وائبریشن کے ذریعے۔ ہر امپیکٹ، ہر وائبریشن ایک مضبوط فاؤنڈیشن بناتی ہے جو مستقبل کے اسکائی اسکریپرز، بریجز اور میگا سٹرکچرز کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہوتی ہے۔ اور سب سے فیسینیٹنگ بات یہ ہے کہ اگرچہ انڈر گراؤنڈ نظر نہیں آتا، مگر یہی وہ جگہ ہے جہاں انجینئرنگ کے اصل مارولز جنم لیتے ہیں۔ ہر پائل کو صحیح اینگل اور ریکوائرڈ ڈیپتھ پر رکھا جاتا ہے تاکہ جو سٹرکچر اس پر کھڑا ہو وہ سالوں تک ہر قدرتی فورس کے خلاف مضبوطی سے کھڑا رہے۔ جب یہ مشین کام کرنا شروع کرتی ہیں تو جائنٹ پائلز جو کئی ٹنز وزنی ہوتے ہیں ایسے زمین میں ڈرائیو کیے جاتے ہیں جیسے گریوٹی کا کوئی وجود ہی نہ ہو۔ وائبریٹری ڈرائیور اتنی ہائی فریکوینسی وائبریشنز پیدا کرتا ہے کہ وہ پائل کے ارد گرد کی سوئل کو فوراً لوزن کر دیتا ہے، اور پھر پائل تقریباً اپنے ہی وزن سے نیچے کی طرف سلائیڈ ہونے لگتا ہے۔ نہ کوئی ہیمرنگ، نہ کوئی ایکسپلوژنز، صرف پیور ٹیکنالوجی اور طاقت کا زبردست مظاہرہ۔ اور سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ یہ پروسیس نہ صرف فاسٹ ہوتا ہے بلکہ انتہائی کنٹرولڈ بھی ہوتا ہے۔ پائلز کو بالکل ایگزیکٹ جگہ پر ملی میٹر پریسیشن کے ساتھ رکھا جاتا ہے۔ جائنٹ موٹر سے پیدا ہونے والی وائبریشن اور پاور اتنی امپریسیو ہوتی ہے کہ جب آپ اسے دیکھتے ہیں تو لگتا ہے جیسے مشینز زمین کو پانی کی طرح ریپل کر رہی ہوں۔ یہ واقعی ایک گیم چینجر ہے، نہ صرف اپنی پاور کی وجہ سے بلکہ پورے سائٹ کے ورک فلو کو ڈرامیٹیکلی تیز کرنے کی صلاحیت کی وجہ سے بھی۔ جائنٹ برج اسمبلی مشینز جو ریلز پر چلتی ہیں، وہ میسیو برج بینز جو کئی ٹنز وزنی ہوتی ہیں کو اٹھاتی ہیں، ٹرانسپورٹ کرتی ہیں اور بالکل صحیح جگہ پر پلیس کرتی ہیں بغیر کسی رکاوٹ یا ڈیلے کے۔ نہ کوئی ہیوی لفٹ کرینز کی ضرورت، نہ اینڈلیس اسکیفولڈنگ، سب کچھ ریلز پر سموتھلی سلائیڈ کرتا ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ پرفیکٹ ہارمونی میں کام کرتا ہے۔ اور سب سے فیسینیٹنگ بات یہ ہے کہ اس سسٹم کے ذریعے
ब्रिज कंस्ट्रक्शन एक प्री प्रोग्राम्ड रोबोट शो की तरह आगे बढ़ता है। जायंट पीसीज मूव होते हैं, अलाइन किए जाते हैं और सिक्योर भी हो जाते हैं, वो भी बगैर किसी स्टॉप या पॉज के। नए ब्रिजेस सिर्फ चंद दिनों में तैयार किए जा सकते हैं, खास तौर पर उन इलाकों में जहां ट्रैफिक रोकना नामुमकिन होता है, जैसे कि रेलवेज या बिजी हाईवेज। नाजरीन, ऑपरेटर्स मिलीमीटर लेवल की कैलकुलेशन के साथ कटिंग करते हैं। एक छोटी सी मिस्टेक पूरे स्ट्रक्चर की इंटेग्रिटी को खतरे में डाल सकती है, चाहे वो स्काई स्क्रैपर्स की फाउंडेशन हो या ब्रिजेस के पियर्स। जब कंक्रीट हेड कटिंग का मरहला आता है तो जो कोई भी ये मंजर देखता है वो पावर और फाइनेंस के इस परफेक्ट कॉम्बिनेशन पर हैरान रह जाता है। ये शानदार स्ट्रक्चर सिर्फ चाइना के नहीं बल्कि पूरी दुनिया के साइंटिस्ट की इमेजिनेशन को चैलेंज करता है। ये पूरा स्ट्रक्चर 4450 पैनल्स पर मुश्तमिल है और हर पैनल का वजन तकरीबन 445 किलोग्राम है, यानी मजमूई तौर पर इन पैनल्स का वेट एक बोइंग 747 से भी ज़्यादा है। जी हाँ, आपने बिल्कुल दुरुस्त सुना। मगर सबसे हैरानकुन बात यह है कि ये पैनल्स इतनी ज़बरदस्त प्रिसीजन के साथ प्लेस किए जाते हैं कि हर पैनल को 100 ऑफ अ मिलीमीटर की एक्यूरेसी से एडजस्ट किया जा सकता है। नाजरीन, सबसे स्ट्राइकिंग फैक्ट ये है कि ब्यानजियांग ब्रिज ने 2 प्रोविंसेस के दरमियान ट्रैवल टाइम को 5 घंटे से कम करके सिर्फ 1.5 घंटे तक महदूद कर दिया है। इससे ना सिर्फ रीजन में ट्रेड और टूरिज्म में ज़बरदस्त इजाफा हुआ है, बल्कि ये इलाके की इकोनॉमिक ग्रोथ में भी बड़ा किरदार अदा कर रहा है। इस अजीमुशान पुल के ज़रिए चाइना ने दुनिया की ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर में अपनी लीडिंग पोजीशन को मज़ीद मजबूत कर लिया है। अब वक्त ही हमें दिखाएगा कि ये एडवांसमेंट मुस्तकबिल में दुनिया पर क्या असर डालती है। नाजरीन, ये कोई गेम नहीं बल्कि हकीकत है, एक सुर्ख हकीकत। न्यू साउथर्न जिनजियांग रेलवे का कंस्ट्रक्शन प्रोसेस 7 साल में मुकम्मल हुआ। इस पर $2.8 बिलियन की खतीर रकम खर्च हुई। इस दौरान इंजीनियर्स और वर्कर्स ने जिस डेडिकेशन और स्किल का मुजाहरा किया वो वाकई ही हैरानकुन है। ये मेगा प्रोजेक्ट 1200 किलोमीटर लंबा है और ना सिर्फ फ्रेट ट्रेन्स बल्कि हाई स्पीड ट्रेन्स के लिए भी काम करता है। इसके कंस्ट्रक्शन प्रोसेस में जो इंजीनियरिंग टेक्निक्स और एडवांस टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल की गई उन्होंने दुनिया भर में बड़ी एडमिरेशन हासिल की है। वाकई ही ये प्रोजेक्ट चीन की इंजीनियरिंग एक्सीलेंस और मुस्तकबिल की ट्रांसपोर्ट विजन की एक शानदार मिसाल है। नाजरीन, वुहान चाइना में कोविड-19 एपिडेमिक के दौरान बनाया गया कीवी वॉशिंगटन हॉस्पिटल वाकई इंजीनियरिंग और लॉजिस्टिक का एक ऐसा मौजज़ा है जिसे दुनिया कभी नहीं भूलेगी। ये हॉस्पिटल 2020 में उस वक़्त तामीर किया गया जब पूरी दुनिया एक शदीद क्राइसिस का शिकार थी। हैरानकुन बात यह है कि ये पूरा अस्पताल सिर्फ 10 दिन में मुकम्मल कर लिया गया। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, सिर्फ 10 दिन। ये हॉस्पिटल हज़ारों पेशेंट्स के लिए एक रे ऑफ होप बनकर उभरा, बिल्कुल उस वक़्त जब एपिडेमिक अपने इंतहा पर था। इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पीड और प्लानिंग ने दुनिया भर में चाइना की एमरजेंसी रिस्पॉन्स कैपेबिलिटीज़ और इंजीनियरिंग पावर को पूरी तरह वाज़ेह कर दिया। अब ज़रा बात करते हैं चाइना के अगले मेगा प्रोजेक्ट की। ताइशान न्यूक्लियर पावर प्लांट का कंस्ट्रक्शन प्रोसेस 10 साल पर मुहित रहा और इस पर तकरीबन $20 बिलियन की लागत आई। इस दौरान 30,000 से ज़ायद वर्कर्स और इंजीनियर्स ने इस अजीमुशान प्रोजेक्ट में हिस्सा लिया। क्या ये हैरानकुन नहीं? इस मेगा प्रोजेक्ट की तामीर में जो इंजीनियरिंग टेक्निक्स इस्तेमाल हुई वो किसी मास्टरपीस से कम नहीं। ख़ास तौर पर एडवांस कंक्रीट टेक्नोलॉजी और स्टील स्ट्रक्चर का इस्तेमाल जो रिएक्टर बिल्डिंग्स की कंस्ट्रक्शन में किया गया, इसने पावर प्लांट की सेफ्टी और ड्यूरेबिलिटी को गैर मामूली हद तक बढ़ा दिया। ये प्रोजेक्ट न सिर्फ चाइना की टेक्नोलॉजिकल एक्सीलेंस को जाहिर करता है बल्कि ये भी साबित करता है कि अगर प्लानिंग, मैन पावर और एडवांस टूल्स का दुरुस्त इस्तेमाल किया जाए
तो नामुमकिन को भी मुमकिन बनाया जा सकता है। नाजरीन, ये ब्रिज जो आपको इस वक्त स्क्रीन पर नजर आ रहा है, ये ब्रिज सिर्फ चीन का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का एक सिविल इंजीनियरिंग मार्वल है। दनियांग कुनशान ग्रैंड ब्रिज जो 164.8 किलोमीटर लंबा है, दुनिया का सबसे लंबा ब्रिज होने का एजाज रखता है। ये ब्रिज शंघाई और नानजिंग के दरमियान हाई स्पीड रेल लाइन का हिस्सा है और वाकई ही एक इंजीनियरिंग का मोजज़ा है। इस ब्रिज की तामीर ने दुनिया भर में चाइना की इंजीनियरिंग कैपेबिलिटीज़ और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की नई बुलंदियां दिखाईं। ये ब्रिज ना सिर्फ अपने तूलो अर्ज के लिहाज से बल्कि अपनी टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन के सबब भी एक शानदार मिसाल है। चाइना का अगला मेगा प्रोजेक्ट फ्यूजो पिंकन ब्रिज 16.3 किलोमीटर लंबा है और चाइना का सबसे लंबा ओवरसीज ब्रिज होने का एजाज रखता है। ये ब्रिज फूजो और पिंकन आइलैंड को आपस में जोड़ेगा और इससे इलाके की इकोनॉमिक और सोशल स्ट्रक्चर में एक इनकलाबी तब्दीली आएगी। नाजरीन, ये ब्रिज न सिर्फ अपने तूलो अर्ज की वजह से अहम है बल्कि ये इलाके की तरक्की और जड़ों को मजबूत करने में एक अहम किरदार अदा करेगा। इसका तामीराती अमल चीन के ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एम्बिशंस का वाज़ेह सबूत है। क्या आप जानते हैं कि ये शानदार डैम कैसे तामीर किया गया? इसका कंस्ट्रक्शन प्रोसेस एक इंजीनियरिंग मार्वल है। नाजरीन, 10,000 वर्कर्स ने दिन रात मेहनत करके इस प्रोजेक्ट को हकीकत में तब्दील किया। 8 मिलियन क्यूबिक मीटर्स कंक्रीट और तामीर में इस्तेमाल होने वाली बड़ी टर्बाइन्स ने इस प्रोजेक्ट को वाकई ही एक जायंट मंसूबा बना दिया। इसके अलावा स्पेशल टेक्निक्स इस्तेमाल की गईं ताकि डैम की तामीर के दौरान माहौलियाती नुकसान कम से कम हो। ये प्रोजेक्ट ना सिर्फ अपने हुजम और पेचीदगी की वजह से काबिल ज़िक्र है बल्कि इसमें इस्तेमाल होने वाली इन्वायरमेंटली फ्रेंडली प्रैक्टिसेस ने इसे एक शानदार मिसाल बना दिया है कि किस तरह टेक्नोलॉजी और कुदरती वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ के दरमियान तवाज़ुन कायम किया जा सकता है। येलो रिवर टनल एक अजीम टनल है जो चीन के येलो रिवर के नीचे से गुजरता है। इसकी लंबाई 7 किलोमीटर है। ये टनल 2 अहम शहरों को आपस में जोड़ेगा जिससे ट्रांसपोर्टेशन की रफ्तार में तेज़ी आएगी और इकोनॉमिक ग्रोथ को मज़ीद बढ़ावा मिलेगा। नाजरीन, ये टनल ना सिर्फ चीन की इंजीनियरिंग एक्सीलेंस का मज़र है बल्कि ये इस बात का भी वाज़ेह सबूत है कि तरक्की और जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए दुनिया को नए इम्कानात फ़राहम किए जा सकते हैं। नाजरीन, अब ज़रा बात करते हैं थ्री गॉर्जस डैम की जो कि यंगत्ज़ी रिवर पर बनाया गया है। हकीकत में एक इंजीनियरिंग मिरेकल से भी तवज्जो का मरकज़ है। इस एयरपोर्ट का टर्मिनल बिल्डिंग दुनिया का सबसे बड़ा सिंगल टर्मिनल बिल्डिंग है जो 7 लाख मुरब्बा मीटर के रकबे पर फैला हुआ है। जी हाँ, होंगजो बे ब्रिज की जिसकी तामीर में 9 साल का अरसा लगा और इस पर 1.5 बिलियन डॉलर्स की लागत आई। इस दौरान 6 लाख मिलियन क्यूबिक मीटर्स कंक्रीट और 8 लाख टन स्टील इस्तेमाल की गई। इतने बड़े प्रोजेक्ट में इंजीनियर्स और वर्कर्स की मेहनत और महारत वाकई ही शानदार है। इस ब्रिज की तामीर में दुनिया की सबसे जदीद इंजीनियरिंग टेक्निक्स इस्तेमाल की गईं जिसने दुनिया भर में तारीफ और हैरत की लहर दौड़ाई। इस अजीम शान ब्रिज की तामीर ने चीन के इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेबिलिटीज़ और इंजीनियरिंग एक्सपर्टीज़ को एक नई सतह पर पहुंचा दिया। तामीर के अमल में इस्तेमाल होने वाली इंजीनियरिंग टेक्निक्स वाकई ही मास्टरपीस हैं। नाजरीन, अब ज़रा बात करते हैं चाइना के अगले मेगा प्रोजेक्ट की। जिस प्रोजेक्ट के बारे में हम जानने जा रहे हैं उसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि समंदर की गहराइयों से ऑयल कैसे निकाला जाता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आप यकीन नहीं करेंगे जब तक आप ये अजीम ऑयल प्लेटफॉर्म ना देखें। ऑयल प्लेटफॉर्म्स ऐसे मकामात पर कायम किए जाते हैं जहां ऑयल रिजर्व्स समंदर की तह के नीचे मौजूद हैं। नाजरीन, इन प्लेटफॉर्म्स पर ऑयल ड्रिलिंग रिग्स नस्ब होते हैं
जो समंदर की तह में बड़े बड़े ड्रिल्स के जरिए सुराख करते हैं। इसके बाद ऑयल ज़ेरे ज़मीन ज़खायर से सतह तक पंप किया जाता है। ताहम ये अमल बहुत ज़्यादा प्रिसीजन और एडवांस टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होती है। अब ज़रा बात करते हैं चाइना के एक और हैरानकुन डैम की, यानी कोफर डैम। एक आर्जी ढांचा होता है जो पानी को काम के इलाके से अलहदा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जब ज़ेरे समंदर या दरिया की तामीर या मुरम्मत की जाती है, कोफर डैम्स ये यकीनी बनाते हैं कि पानी बाहर रहे, जिससे अंदर एक खुशक काम करने का माहौल बनता है। ये इंजीनियर्स और वर्कर्स को ज़ेरे समंदर ढांचों को मजबूत और मौसर तरीके से तामीर या मुरम्मत करने की इजाज़त देता है। नाज़रीन, आपने ये बड़े बड़े विंड टरबाइन तो देखे होंगे, लेकिन इनकी कंस्ट्रक्शन कैसे की जाती है अब ज़रा वो देखिए। इन बड़े ढांचों में हवा की तवानाई को बिजली में तब्दील किया जाता है। सबसे पहले इस इलाके का तयन किया जाता है जहां टरबाइन्स नस्ब की जानी हैं। फिर तैयारी का अमल शुरू होता है। एक ज़मीन का सर्वे किया जाता है और मुनासिब बुनियाद तश्कील दी जाती है। बुनियाद को मुस्तहकम किया जाता है ताकि टरबाइन के भारी वज़न को सहारा दे सके। इस मरहले में कंक्रीट डाला जाता है और बुनियाद का ढांचा तश्कील दिया जाता है। टावर को स्टील या कंक्रीट पैनल से बनाया जाता है और ये हिस्सों में मुंतकिल करके तामीराती साइट पर जोड़ा जाता है। टावर की असेंबली मुकम्मल होने के बाद टरबाइन का रोटर और ब्लेड्स नस्ब किए जाते हैं। आखिर में टरबाइन के कंट्रोल और मॉनिटरिंग सिस्टम नस्ब किए जाते हैं। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हमने चाइना के बहुत से ब्रिजेस की बात की जो ज़मीन के ऊपर बनाए गए हैं, लेकिन अब ज़रा बात करते हैं फ्लोटिंग ब्रिजेस की। ये पुल पानी पर तैरते हैं और अमूमन आर्जी या मुस्तकिल तौर पर इस्तेमाल होते हैं। ये पुल दरिया, झीलों और समंदरों के पार गुजरने के लिए बहुत अहम है और ये एक बेहतरीन इंजीनियरिंग मोजज़े की मिसाल है। इस जदीद टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग के ज़रिए तामीर का अमल वाकई मुतासिर कुन है। नाज़रीन, चाइना के इन मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में आपका क्या ख्याल है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। उम्मीद है कि आज की ये वीडियो भी आपको भरपूर पसंद आई होगी। आपकी मोहब्बत भरी सपोर्ट का शुक्रिया। आपसे हमारी अगली ऐसी ही शानदार वीडियो में मुलाकात होगी।